Good morning, children. How are you all? Welcome back to English class, children. Okay. Yesterday I asked you that any lesson or in grammar any chapter you want to study. So you told me lesson second from Honeysuckle, that is how the dog found himself a new master. Children, I liked it very much that now you have started speaking, taking interest, and now you have started asking questions and in fact giving answers also. Very nice, children. It's very good initiative. Like this only if you will do, I will also come to know how much you learn, how much you don't know anything. Very good, children. Today we will read Today we will do lesson second. How the dog himself a new master. Okay, children. Today I will teach you how the dog found himself a new master. Lesson second from Honeysuckle. Any other query, children? There will be live classes for 1 hour before your exams and the day of your exams also. After the exam for the next subject, preparing for the preparation of your next subject. So any query, don't worry that this is our last lecture or this will be our it will be our last live class. No, children. When your exam will be there, I will conduct 2 live classes for you. So any query, any difficulty, you can ask me at that time also. Okay, children. So now let's start. Okay. So how the dog found himself a new master. कैसे वो अपना एक नया मालिक ढूंढता है. ठीक है. Now see. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom. Means जैसे wolves means जैसे भेड़िए रहते हैं, उनका कोई मास्टर नहीं होता. दे झुंड में रहते हैं. उनके झुंड को भी हम पैक बोलते हैं और डॉग्स के झुंड को भी हम पैक बोलते हैं. ओके, करेक्टिव नाउन हो गया ये. एंड दे आर सेइंग दैट डॉग यूज्ड टू लिव लाइक वोल्व्स डू. दे डिडंट हैव एनी मास्टर्स. उनका कोई मालिक नहीं होता था. दे वर वेरी फ्री. Until a dog was born who was ill pleased with this way of life. Until a dog who was unpleased, ill pleased means who didn't want to live like this, a life like this without a master, whose life has no direction. Means children, अब देखो आपके parents हैं, they guide you, right? You feel like they scold you or they interfere in many things about you. But children, if they are not there, then what will you do? You have no direction. आपकी कोई direction नहीं होती. आप क्या करते हैं आपको खुद नहीं पता. Right, children? So parents are necessary because they guide you. They are your elders. Right? So the dog also found it very unpleasant that he has no master. He has to roam freely. He is roaming freely. He is free to go anywhere. No one is there to control him. About his freedom, he didn't like the way it is. He thought or he wanted a master for himself who guide him and to whom he can trust. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. Now see,
दे आर सेइंग ही वाज सिक एंड टायर्ड ऑफ वैंडरिंग। सिक इधर मतलब ये नहीं कि बीमार हो गया था, वो सिक मीन्स परेशान हो गया था, थक गया था, परेशान हो गया। वैंडरिंग मतलब ऐसे खाली घूमने से, खाने की तलाश में। अब वो सिक इधर है कि वो थक गया था, परेशान हो गया था। टू वैंडर लाइक दिस विदाउट एनी एम इन सर्च ऑफ फूड एंड बाय फ्राइटनिंग ऑफ दोज हु आर स्ट्रॉन्गर देन हिम। फ्राइटन मतलब डरना। अब ठीक है, खाने की तलाश में जा रहे हैं, लेकिन जब हम खाना ढूंढ रहे हैं तो हम उनसे भी डर रहे हैं जो हमसे ताकतवर है, राइट? तो उनसे भी डर, हमें उनसे भी बचना है और खाना भी ढूंढना है। सो ही वॉज टायर्ड ऑफ दिस। इफ ही वुड हैव मास्टर देन ही वुड हैव नॉट थॉट ऑफ फूड। उसको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता, वो मास्टर उसको अपने आप खाना ला के देता। सो दैट व्हाट ही वांटेड। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. And he set out to find such a master. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant. अब उसने बहुत सोचा and then he thought कि सबसे अच्छी बात है कि वो किसी का सर्वेंट बन जाए, किसी ऐसे का सर्वेंट जो इस पूरे अर्थ पे सबसे ज्यादा ताकतवर हो, उसे ही वो अपना मास्टर बना लेगा, उसका नौकर बन जाएगा। अगर एंड इफ ही इज द सर्वेंट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन और स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल और एनीवन स्ट्रॉन्गेस्ट, देन ही नीड नॉट फ्राइटन और नीड नॉट फियर फ्रॉम एनीवन एल्स। फिर उसे डरने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि सबसे जो ताकतवर है वो उसका तो मालिक है, ये उसका नौकर है, तो डेफिनेटली मालिक नौकर को कुछ छोड़ना होने देगा। और ये उसका नौकर है तो उसको कुछ होगा नहीं, और इसको खाने की तलाश की भी जरूरत नहीं। सो दैट्स व्हाई ही वांटेड अ मास्टर फॉर हिमसेल्फ हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन अर्थ। सो ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर। और फिर वो ऐसे एक मास्टर की तलाश में निकल गया। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. किन्समैन मतलब रिश्तेदार। वोल्फ जो होते हैं वो चिल्ड्रन, जो डॉग है वो वोल्फ के ही रिश्तेदार है। आपने कई बार देखा होगा डॉग जो वोल्फ की तरह हु करके भी बोलते हैं, सेम उनकी तरह ही बॉडी फिगर होता है इनका। सो एंड बोथ देयर ग्रुप्स को हम पैक बोलते हैं। सो दे आर देयर रिलेटिव्स ओनली। तो ये कह रहे हैं कि अब चलता चलता इसको अपना एक रिश्तेदारी वो है तो वो वोल्फ मिला। अब वो कैसा था वोल्फ? ही वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स। फियर्स मतलब डराना, भयानक, डरावने वाला, और गुस्सैल जिसे हम कहते हैं, जो लड़ने को तैयार हो, प्लस स्ट्रॉन्ग था, ताकतवर था। उसको एक ऐसा वोल्फ मिला। Where are you going, dog? The wolf asked. अब वोल्फ ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? Where are you going, dog? I am looking for someone to take up service with. Would you like to be my master, wolf? वोल्फ बोलेंगे अब इसको चिल्ड्रन। वोल्फ क्या बोलते हैं हम इसको? प्रोनाउंसिएशन क्या है? वोल्फ। वोल्फ नहीं होता, इट्स वोल्फ। सी नाउ अब वो कह रहा है कि आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप द सर्विस विद। मैं कोई अपने लिए मालिक ढूंढ रहा हूं, मैं किसी का सर्वेंट बनना चाहता हूं। द डॉग सेड टू द वुल्फ। नाउ ही सेड वुड यू बी माई मास्टर। अब डॉग ने वुल्फ को एक ऑफर प्रेजेंट किया कि डैड क्या आप मेरे मालिक बनोगे? आई डोंट सी व्हाई नॉट, द वुल्फ सेड एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। और फिर वुल्फ ने कहा हाँ क्यों नहीं, चलो नहीं बात बताओ, कोई नौकर बनना चाहेगा तो आप क्यों नहीं बनाओ? तो उसने कहा हाँ भाई क्यों नहीं बनाऊंगा, मैं जरूर बनाऊंगा। और वो दोनों फिर एग्रीमेंट पे तैयार हो गए। ठीक है कि वहां से वो मालिक है, वुल्फ जो मालिक है, वो डॉग जो है नौकर है, और दोनों फिर जंगल में निकल पड़े। नाउ दे वॉक एंड ऑल ऑफ अ सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, स्निफ्ड, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. Now see, they walked and they walked. वो चलते रहे, जंगल में चलते रहे। And all of a sudden the wolf lifted his nose. अब जंगल में चल रहे थे, चले जा रहे थे, आगे चले जा रहे थे। अचानक क्या हुआ? वो वुल्फ ने अपना मुंह ऊपर करके, नाक ऊपर करके, स्निफ्ड मतलब सूंघा,
चिल्ड्रन जैसे डॉग्स जो सूंघते वो नाक से सूंघते, ऐसा बिहेव भी करते, फेस भी ऐसा बनाते हैं, उनकी नोज भी हिलती है। तो वो जो है वुल्फ जो है उसने अपना ऐसा नाक ऊपर किया और तो सूंघने लगा। स्निफ्ड मीन्स सूंघना एंड डार्टेड मीन्स अचानक से कूद कर चले जाना, अचानक से भाग जाना, ऑल ऑफ अ सडन। तो जो है डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, अचानक से वो उसने कुछ सूंघा हवा में और फिर एकदम से जो रास्ते पे चले जाते वहां से एकदम से साइड में भाग गया और जो बुशेस थी, झाड़ियां तो उनके पीछे जाके छुप गया। एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, वो झाड़ियों के पीछे छुप गया और घने जंगल के अंदर भाग गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज, अब वो डॉग को हो गया ये क्या हुआ अचानक से, भाई दोनों चले जा रहे हैं, उसने हवा में ऐसे सूंघा और फिर एकदम से अचानक से भाग पड़ा, अपना रास्ता छोड़कर झाड़ियों में चला गया और फिर अंदर घने जंगल में चला गया। ही वो सरप्राइज कि अचानक क्या हो गया उसको। What's come over you, master? He asked. What has frightened you so? अब उसने कहा क्या हो गया तुम्हें, ऐसा क्यों किया तुमने, किस चीज से तुम डर गए। अब उसे तो लग रहा था that yes he is the strongest on the earth, but he thought that इसको भी डर लग रहा है, तो ये किससे डर रहा है, why he is frightened, और किससे भी डर रहा है। Can't you see there is a bear out there and he might eat up both of us, you and me. तो उसने कहा तुमने देखा नहीं, एक भालू है, एक भालू आ रहा है, वो हम दोनों को कच्चा ही चबा जाएगा, वो हम दोनों को खा सकता है। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. अब उसने डॉग ने देखा अरे इस वुल्फ से स्ट्रॉन्ग तो बियर है, तो क्यों ना मैं बियर की जो है सर्विस ले लूं, उसका नौकर बन जाऊं, उसको अपना मालिक बना लूं। सो ही सेड टू द बियर, और उसी टाइम से उसने वुल्फ की जो है सर्विस छोड़ दी। एंड ही वेंट अप टू द बियर एंड आस्क्ड हिम दैट विल ही बी हिज मास्टर। अब उसने बियर से पूछा क्या तुम मेरे मालिक बनोगे। The bear agreed to this readily and said, वो बिल्कुल रेडीली मतलब हाँ बहुत आराम से तैयार हो गया। Obviously children, who won't be, कौन तैयार नहीं होगा जिसको फ्री का नौकर मिलेगा। तो वो वुल्फ जो है तैयार हो गया। And said, let us go and find a herd of cows. I will kill a cow and then we can both eat our fill. अब उसने कहा हाँ क्यों नहीं, चलो हम चलते हैं और एक गायों के एक झुंड को ढूंढते हैं, मैं उस झुंड में से एक गाय को मार दूंगा और फिर हम दोनों आराम से अपना पेट भर के उसको खाएंगे। बहुत ईट आर फिर मतलब हम पेट भरने तक उसको आराम से खाएंगे, हम दोनों का उससे पेट आराम से भर जाएगा। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come to it, they were stopped by a terrible noise. Terrible मतलब बड़ी अजीब सी, भयानक सी। अब ये कह रहे हैं कि वो चलते चले गए, अचानक उनको एक गायों का झुंड दिखा और जैसे उनको गायों का झुंड दिखा वो वैसे उसके करीब जाना उन्होंने शुरू किया। और जैसे ही उन्होंने गायों के करीब वो झुंड के करीब जाना स्टार्ट किया, दे हर्ड अ टेरिबल नॉइज, उनको एक बहुत अजीब सी भयानक सी आवाज सुनाई और वो रुक गए। The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. Panic मतलब डर रहे हुए, डर के मारे। अब mooing मतलब जो गाय मैं करके भै करके जो आवाज लगाते उसे mooing कहते हैं। तो कह रहे हैं कि गायों ने ऐसे जोर जोर से mooing करना स्टार्ट कर दिया और डर के मारे इधर उधर भागने लगे। ऐसा नहीं था कि एक डायरेक्शन में भाग रहे, इधर उधर जहां उनको दिख रहा था डर के मारे वो भाग रही थी। The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. Hastily मतलब जल्दी से। अब बियर ने देखा कि ये क्या हो रहा है, उसने एक पेड़ के पीछे से थोड़ा सा ऊंचा होकर देखा कि क्या बात है, और जब उसने देखा तो वो भी एकदम से ही जल्दी में घने जंगल की ओर भाग पड़ा, वो भी जंगल के अंदर भाग पड़ा, भागने लग गया वो। Now why I have to come here?
said he to the dog. अब उसने कहा अब क्या हो गया, अब किससे ये डर गया। अब उसको लग रहा था वुल्फ स्ट्रॉन्ग है, फिर उसको लगा वुल्फ से ज्यादा तो बियर है, अब उसको लग रहा था कि बियर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। नाउ ही वॉज सरप्राइज्ड कि अब ये किससे डर गया, अब क्या पता, अब क्या चक्कर है। नाउ इट इज अ लायन, इट एक्चुअली इट इज अ लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। इट्स लॉयन नहीं होता चिल्ड्रन, लायन होता है, बिकॉज LION लिखते हैं हम, LOIN नहीं लिखते हैं, सो इट्स लायन नॉट लॉयन। ओके चिल्ड्रन, नाउ सी चिल्ड्रन, अब ही आस्क्ड द बियर्ड व्हाट्स द मैटर, अब तुम किससे डर, अब क्या होगा, अब मैंने फिर गलत मालिक तो नहीं चूज कर लिया। नाउ ही सेड कि तुमने देखा नहीं कि ये तो एक लायन है और ये जंगल के इस तरफ का राजा है। द लायन हु इज ही, ये कह रहा लायन वो कौन है, डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। अब उसने कहा तुम्हें नहीं पता, ये तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जानवर है अर्थ का। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। अभी कह रहा है कि अच्छा ये बात है, तो फिर मैं तुम्हें भी गुड बाय कहता हूं, मैं तुम्हें भी अपने तुमसे भी अब तुम्हें भी अपना मालिक नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हारा भी नौकर नहीं बनूंगा, क्योंकि मुझे इस धरती पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल या कोई जो इस धरती पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो, जिससे कोई न डरता हो, उसे ही मैं अपना मालिक बनाऊंगा। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। और फिर वो जो है डॉग जो है लायन के पास चला गया उसे अपना मालिक बनाने। The lion agreed to it and the dog stayed with him and served him for a long time. और फिर जब वो लॉयन भी तैयार हो गया, ठीक है मेरे नौकर बन सकते हो, मैं तुम्हारा मालिक बन जाऊंगा। और फिर दोनों काफी लंबे समय तक ऐसे रहे, इकट्ठे रहे दोनों। लॉयन जो था उसका मालिक था और डॉग उसका नौकर, और जैसा लायन कहता था वो उसकी हेल्प करता था, और दोनों ऐसे काफी लंबे समय तक दोनों एक साथ ऐसे रहे। It was a good life and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion. अभी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी, मजे की लाइफ चल रही थी उसके साथ, वो आराम से लायन की सेवा कर रहा था। क्यों? क्योंकि अब लायन से तो कोई डरता नहीं था, वो स्ट्रॉन्गेस्ट था पूरे फॉरेस्ट में, जंगल में। तो आपको भी पता है लायन तो जंगल का राजा होता है, उससे ताकतवर कोई होता ही नहीं है, तो सबसे ताकतवर था। अब निश्चिंत था वो डॉग, उसे और क्या चाहिए था, उसे यही तो चाहिए था कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो इस अर्थ पे वो उसका मालिक बने। अब उसे डरने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो तो जंगल के राजा के साथ था, सब उससे डरते थे, और उसकी जिंदगी बहुत आराम से मजे की बीत रही थी। नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस डॉग को कोई छुए भी, मतलब उसको कोई नुकसान पहुंचाए, उसको कुछ कहे, या वो जैसा कह रहा है उसका कहना ना माने। अगर उसने जो कहा है सब उसका कहना मानते, क्योंकि सबको पता था कि ही इज द सर्वेंट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल। But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. Amid bare cliffs मतलब बीच में से, cliffs मतलब चलो पहाड़ जो होता है उसकी जो किनारी होती है, जैसे ढलान आती है उसे क्लिफ कहते हैं। जो ऊपर की किनारी होती है जिससे ऐसे गिरते हैं, ढलान आती है, उसे हम क्लिफ कहते हैं। ये पहाड़ है तो ये चोटी है, और ये जो फिसलता रास्ता आते से हम किनारे पर ऐसे चोटी पर से इसे हम क्लिफ कहते हैं। अब बेर मतलब यहाँ पे केवल कंकर मिट्टी पत्थर है, कोई पेड़ या कुछ नहीं है जिसके सहारा वो पकड़ सके। तो ये कह रहा है कि एक बार ये दोनों साइड बाय साइड, मतलब ये रास्ता चला जा रहा है, तो एक तरफ लायन है और एक तरफ वो डॉग है, दोनों बराबर में एक ऐसे रास्ते पर चले जा रहे हैं, ऐसे पहाड़ के ऊपर किनारी पर, उसके बीच में से दोनों चले जा रहे हैं रास्ते पर से। कि अचानक क्या होता है, व्हाट हैपेंड दैट द लायन स्टॉप्ड,
एकदम से अचानक से ऑल ऑफ अ सडन द लायन स्टॉप. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. और फिर रोर मतलब वो जोर से उसकी गुर्राया, वो जो शेर दहाड़ता है. क्या हो गया, अचानक से वो दोनों चले जा रहे थे और अचानक से जो है शेर जोर से दहाड़ा और उसने अपना पंजा जो है, पॉ मीन्स पंजा, अपने जोर से धरती पे इतनी जोर से मारा कि धरती पर गड्ढा हो गया. Then he began to back away very quietly. और फिर उसने धीरे धीरे जो है पीछे हटना स्टार्ट कर दिया. What is it, master? Is anything wrong? Asked the dog surprised. अब डॉग फिर सरप्राइज था. वैसे तो काफी लंबा टाइम हो गया था दोनों को साथ रहते हुए, तो डॉग को पता था that he is the strongest. इससे तो सब डरते हैं, इससे ऊपर तो कोई भी नहीं है. तो अब उसको हैरानी होती कि अब ये क्यों पीछे हट रहा है, ये क्यों डर रहा है, अब क्या हो गया, अब ऐसा इससे भी स्ट्रॉन्ग और कौन आ गया, अब ऐसा क्या हो गया कि ये जिससे डर रहा है ये पीछे हट रहा है. व्हाट हैज हैपेंड? तो उसने डॉग लायन से पूछा. आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे. द लायन सेड, वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल. कह रहे मैंने सुना है कि यहाँ पर एक आदमी चला आ रहा है, इससे सबसे अच्छी बात है कि हम यहाँ से भाग लें, नहीं तो हम मुसीबत में हम पड़ जाएंगे, नहीं तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे. बेटर है कि हम यहाँ से भाग लें. वी शुड रन अवे फ्रॉम हेयर. ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन. आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ. ओह दिस इज द मैटर. देन वेल आई विल से गुड बाय टू यू ऑल्सो. देन अब डॉग सेड कि अब ये बात है कि तुमसे भी ऊपर कोई है. देन आई विल से गुड बाय टू यू बिकॉज आई वॉन्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन दिस ऑन दिस अर्थ. आई विल बी अ सर्वेंट और आई विल मेक अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन दिस अर्थ. इस धरती पर जो किसी से भी नहीं डरे, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मैं उसे ही अपना मालिक बनाऊंगा, मैं उसी का ही सर्वेंट बनूंगा, उसे ही अपना मास्टर बनाऊंगा. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू ज्वाइन द मैन एंड स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली. फेथफुली मतलब पूरी वफादारी के साथ. और फिर वो जो डॉग है वो उस आदमी के पास गया और फिर उसके साथ रहा और उसको पूरी जिंदगी पूरी ईमानदारी के साथ उसका नौकर बना रहा. उसको पूरी ईमानदारी के साथ उसका सारा काम करता रहा और उसे अपना मालिक बनाया. This happened long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master. तब ये चिल्ड्रन बहुत लंबे, बहुत ज्यादा समय पहले की बात है जब ये किस्सा हुआ था, और तब से आज तक डॉग जो है इंसान का सबसे वफादार जानवर है, सबसे वफादार नौकर है. और तब से डॉग ने किसी और को अपना मास्टर नहीं बनाया. तब से डॉग जो है, इंसान और डॉग का रिलेशनशिप चला आ रहा है. तब से डॉग जो है इंसान का सबसे वफादार जानवर है, वफादार नौकर है, और उसने आज तक किसी और को अपना मास्टर नहीं बनाया. आई थिंक नाउ द queries, this lesson is clear to you all. Any other difficulty you can ask me, children, in grammar also. So don't worry, I will take your 2 live classes before your exams also. You need not worry, as I will take the day before the exam and the day on which your previous exam finishes. For example, on 21st, for example on 23rd your English exam is there. So I will take your live class on 21st after your exam is over, and on 22nd also. Like this, all subject teachers will take your live classes, so that you have any difficulty, it will be clear. Okay children, you need not worry. Easy. Read all the lessons carefully, learn their word meanings and book exercise. You should know the whole story of the lesson. And in grammar, you can ask me any topic which you don't know. Antonyms, synonyms, you all know synonyms, पर्यायवाची, antonyms, विलोम शब्द,
And verbs means, children, or doing words are called verbs. Or doing words are called verbs. Okay children, any other you can ask me. Okay children, so that's it. Bye for today. Thank you.